Hi everyone. So I'll be just adding Sumedha, with whom we are collaborating today. So this is our first live, and we are pretty excited as well as nervous about this event. Nervous to meet you all, and we hope that we reach out to the best the way we are. Yes. Good evening. Okay. So while Sumedha joins, um, hi Sumedha. Hi, Shreya. So I was just telling them about us, about Antakarna. I just started. So, hi everyone. Let me formally introduce myself. I am Shreya. I'm a part of Antakarna. And at Antakarna Group, we are here to create an awareness for everyone out there who is looking out for mental health services. And we just want to create a platform wherein you all can reach to us, open up, and find it as a safe place where you can share your emotions or just the daily activities. And we hope to, support you and help you make that comfortable so that you make friends while you're speaking and you don't feel alone anywhere in the journey of your mental health. And today we have Sumedha with us, and we'll be talking about death and grief. So over to you, Sumedha, without any more ado. Hi, Shreya. Thank you. So, I want to start by asking, have you got any questions for me, or should I just start with the topic? Yes, Should yes, we get we a can go question? ahead with the topic, and then later on we can, if anybody has any questions, they can come up with that. And even I have few questions, so we can just discuss that. Okay. So, these two topics are least talked about. मतलब इतना डरते हैं हम, इतना घबराते हैं डेथ एंड ग्रीफ से. इस बारे में मतलब कल्चर में भी कुछ सिखाया नहीं जाता है. जब हम छोटे होते हैं और सुने फैमिली में किसी की डेथ हुई है तो बच्चों को दूर रखा जाता है. True. एंड दिस इज इनएविटेबल. Hmm. You cannot escape it, and it will eventually happen to each one of us. If not, मतलब हम कभी ना कभी तो experience करेंगे, be it our True. grandparents or extended family members or our own parents or siblings or anyone. So grief पे आते हैं. Grief dictionary meaning just says that it's a suffering or sadness, but from my understanding and from especially after the pandemic, grief Mhm. is like a journey to a foreign world. It means that you have to go through something which you were never prepared of, which you don't know about, and like you just have to do it. There is no choice. एंड इट्स लाइक जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, जहाँ आप एक कंट्री में गए हैं, आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, आपको पता नहीं कि वहाँ के लोगों से कैसे बात करनी है. फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन एक सेकेंड के लिए आप चाइना में खड़े हो एक स्ट्रीट पे, आपको कहीं जाना है एंड यू आर लॉस्ट. आपको पता नहीं कि कैसे, मतलब क्या बॉडी लैंग्वेज से क्या वर्ड्स यूज़ करें, कैसे बताएं, कैसे एक्सप्लेन करें व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड व्हाट यू आर थिंकिंग. एंड आपकी कोई नीड होगी, आपको रहने की जगह ढूंढनी है, खाने की जगह ढूंढनी है, कुछ भी. एंड यू आर जस्ट स्टैंडिंग ऑन दैट स्ट्रीट, आसपास लोग जा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, यू डोंट नो कि बोले क्या, कहाँ जाएं, किसको देखें, किससे हेल्प सीख करें. सो दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली हाउ, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल लोगों को समझाने के लिए कि इफ़ अ पर्सन इज गोइंग थ्रू ग्रीफ, it means that your entire world is shattered. It completely like आपके पूरे इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, इवन स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक, सोशल, इंटरपर्सनल, हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ग्रीफ विल जस्ट टेक ओवर एंड you won't even realize it. And since And everyone talk about it, it is actually a new world wherein we don't know how to be ourselves and to be with somebody. I mean, even the surroundings become very foreign to us. yes, because grief itself is a mind body experience. मतलब इतना एजुकेशन और नॉलेज तो लोगों के पास नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारे कल्चर में इंडिया की बात करते हैं, किसी की डेथ होती है तो हिम्मत रखो,
ये एक लाइन सब सुनते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये दूसरा हाँ। लाइन, एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. हम्म। आई थिंक पीपल हु आर ग्रीविंग राइट नाउ वुड डेफिनेटली हिट दिस लाइन, या आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस दे देते हैं कि कर्मों पे ले आते हैं बात, मतलब कोई ना कोई रीजनिंग देनी है, बिकॉज even other person is feeling your pain, that is why they just want to comfort you, but एक ये चीज़ कि जो सपोर्ट करते हैं ना उनको भी आता तो नहीं है, एंड जो ग्रीव कर रहा होता है वो अपने फॉरेन वर्ल्ड में इतना आइसोलेटेड होता है, इतना डिस्कनेक्टेड होता है. ग्रीफ के टाइम एन इंडिविजुअल इज सो, कैसे बोलेंगे, अ, मतलब आपकी पूरी रियलिटी डिस्टर्ब हो गई है. सडनली द पर्सन यू थॉट you would be living for a, like, you never imagine living without your loved ones, you always thought of them to be living a long while, so suddenly they are no more, and everything around you in that home just turns into, every object just turns into a symbolic थिंग से, मतलब एक होता है ना कि पुराने जीवन की निशानी बन जाता है, उनके कपड़े, उनका सामान, एंड हाँ। इफ नॉट योर फैमिली मेम्बर, आपके कहीं भी अगर आप किसी एक्सटेंडेड फैमिली में या किसी को भी देखोगे, तो यू जस्ट डोंट नो कि उस बारे में बात कैसे करें, बोलना क्या है. तो एक सबसे पहले तो हम थोड़ा सा आ जाते हैं वापस, ग्रीफ हम्म। एग्जैक्टली होता क्या है. ग्रीफ एक माइंड बॉडी एक्सपीरियंस होता है. कैसे फिजिकली, योर बॉडी रिजेक्ट्स द ट्रुथ, योर बॉडी रिजेक्ट्स द रियलिटी. फॉर एग्जाम्पल, हाउ यू हैव बीन ब्रोकन द न्यूज, आपने अकेले सुना है, आपके सब, मतलब कैसे ब्रेक करा, आपने ब्रेक किया तो आपने सुना, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को कैसे बताया, वहीं पे आपकी बॉडी रिजेक्ट होना शुरू हो जाती है, यू स्टार्ट टू फील स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, एंड वहीं पे उसके बाद कम्स ऑल दी, जो भी एक स्ट्रेस साइकिल होती है बॉडी की, वो सारे सिम्टम्स, नींद आना बंद हो जाती है, खाने का मन नहीं करता. तो ये हम्म। तो इजीली फिजिकल सिम्टम्स हैं ग्रीफ के, हम्म। और ये बहुत नेचुरल है. ऑन द टॉप ऑफ दैट रिचुअल्स का एक प्रेशर होता है, एक के बाद एक के बाद एक, वो 13 डे रिचुअल्स चलती है, यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, कैसे एक्ट, क्या बोलना है, एंड बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बट पैंडेमिक में तो कुछ लोगों के साथ वो भी नहीं हो पाया. हम्म। सो प्लस रिलेटिव नॉर्म्स आर समथिंग दैट वी आर नॉट वेरी यूज्ड टू, मतलब हम नहीं इतना समझ पाते, और वो करने भी हमें बहुत ही ज्यादा एज पर द ट्रेडिशन. सो मतलब इट्स लाइक हम वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वेयर वी फिट इन एंड व्हाई वी फिट इन टू दिस एट दैट yes, मोमेंट. yes, because that is a really short period of time where too much is happening in too less time. यस. So you just heard the news and you just have to break it out to your family. अगले दिन वो अंतिम संस्कार क्रियाक्रम, सारे रिचुअल्स जो 13 दिन तक चलते रहते हैं, कुछ लाना है, कुछ करना है, भोग चढ़ाना है, और वो सब, उसके बीच में आपको टाइम नहीं मिलेगा, एंड देन यू आर एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग, जो एकदम मुझे लगता है फंडामेंटली बहुत ही गलत है, बहुत लेवल्स पे, बिकॉज इन अ वे बी स्ट्रॉन्ग से कहने का मतलब है कि आप फील ही मत करो, मतलब आपको स्पेस ही नहीं दिया जा रहा है, आपको रिएक्ट करने का चॉइस ही नहीं दिया जा रहा है, आपको नहीं करना है. बी स्ट्रॉन्ग, हिम्मत रखो. एंड ये मैंने मतलब टाइम से भी सुना, आसपास लोगों में भी देखा है, हिम्मत रखो तो बोल देते हैं, लेकिन कैसे रखना वो कोई आके बताता नहीं है. सो कैसे रखते हैं हिम्मत, वो अब हम डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है फिजिकली के बाद, इमोशनली ग्रीफ कैसे इम्पैक्ट करता है. एंगर, फियर, रेज, गिल्ट, रिग्रेट, मतलब कि काश थोड़ा और बात कर ली होती उस इंसान से, या मैंने कुछ आखिरी वर्ड्स क्या बोले, बिकॉज नहीं पता कौन कब जा रहा है. एक इसका गिल्ट हो जाता है, मतलब हमारा दिमाग, हमारा माइंड इतना ज़्यादा फास्ट चलता है, दे इट इज़ डेस्परेट टू स्टार्ट मेक मीनिंग टू समथिंग विच वी नेवर थॉट विल हैपन, एंड आवर माइंड इज कम्प्लीटली अ मीनिंग मेकिंग मशीन. उसको बस चाहिए कि समझ आइए हुआ क्या है, कैसे हुआ, एंड डेथ विल नेवर मेक सेंस टू यू. इवन एक्सेप्टेंस आ जाएगी इवेंचुअली, बट इट विल नेवर मेक सेंस टू यू, बिकॉज it completely puts you into that existential zone कि ये क्या है, क्यों हुआ, एंड उसके बाद आप जो जो कर रहे होगे डेली अपने रूटीन में ड्यूरिंग द अर्ली ग्रीफ पीरियड स्पेशली,
Mm-hmm. You just go numb. Maybe you won't feel a thing. You are in that bubble of loneliness where you desperately want to share your thoughts, what you are feeling. You want to scream, you want to cry, but you just cannot relate to anyone because it's your loss and not theirs at the end of the day. So emotionally, it will be a roller coaster ride for everyone because depending कि आप अपने imagine भी नहीं कर सकते आपने it's because कि आप जितने टाइम तक एक इंसान को देखते आए अपने फैमिली में या फ्रेंड्स में कि ये तो रहेगा ही आपकी पूरी पास्ट लाइफ आपकी रियलिटी उस इंसान के साथ रही है एंड सडनली दैट पर्सन इज नो मोर सो एवरीथिंग इज अ क्वेश्चन मार्क टू एग्जिस्टेंस coming to interpersonal relationships how grief influences is because we are not able to connect with anyone because for people who are looking to support their loved ones who are grieving उनके लिए ये point that um, like it's the reality that we will never be able to understand the pain unless and until we go through it ये इतना unique pain होता है मतलब मैं discount नहीं कर रही किसी की empathetic intentions को but this is actually true unless and until you are grieving for a bigger loss like that you won't be able to understand so ऐसे में हम कैसे support कर सकते हैं just by acknowledging the pain that the other person is going through a hell lot of stuff and yes just you have to be there there is nothing like कोई words नहीं है जो आपको comfort कर सके just validation and acknowledgement is the key to support anyone who is grieving. There are no special sentences or words even. I don't think so. Even in therapy, we just जो हम अभी कर रहे हैं अंतकरना ग्रुप के थ्रू भी we are just हाँ. providing that space by just welcoming them to express. We are not judging, shaming, commenting, expecting. And one thing that happens with people who desperately want to support people who are grieving is मतलब हम लोग ही नहीं देख पाते अपने loved ones को इतना पेन में हम बहुत एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये जल्दी से ठीक फील करे हाँ. हाँ. जल्दी से ठीक फील हो जाए या कुछ थोड़ी देर के लिए बेटर फील हो एंड ऐसा नहीं होगा इस चीज़ की अवेयरनेस हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो जल्दी ठीक फील कभी भी नहीं करेंगे और इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है ग्रीफ का कोई टाइम पीरियड नहीं होता and especially why there is no time period because suddenly you will be living in that same home you will be going through the same routine उनके jobs and response financially तो अभी हमने बात ही नहीं करी इतने सारे लोग हैं जिनको ग्रीव करने का टाइम नहीं है बिकॉज मतलब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अगर इफ यू हैव लॉस्ट अ पेरेंट और एनी एल्डर मेंबर इन द फैमिली यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ Yes. पेपर वर्क लीगल वर्क so you don't have time for that for grieving and in that journey आपको बहुत सारे triggers मिलते रहेंगे for example if a person has lost their mother आपके आईडी कार्ड पे हर जगह मदर्स नेम फादर्स नेम होता है so everything in your life from that moment from when you have heard the news आपका पूरा like every moment of your life will be a question mark you will be questioning things and you will not be able to relate to your older life so again it's like you are lost then grief comes with depression and loneliness. It is also very natural to feel. आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है कुछ like and आप चाहते भी हो like it's emotional roller coaster ऐसे आपको बात करने की बहुत desperation है लेकिन आपके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए अब एंड उसके बाद इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन सो a lot of times grief comes with a lot of anger कि ये मेरे साथ क्यों हुआ कोई नहीं चाहेगा कि वो अपने loved one को खो दे nobody and it's so unfair and it's inevitable and for cases जहाँ पे sudden deaths हुई है especially in pandemic in a really short time बहुत सारी हमने रोज का सुना है नंबर बढ़ता हुआ so it's so unfair there was no reason why it happened yes of course your brain will eventually find out reasons but those reasons are just unacceptable to you एंड इसीलिए एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहता है लोनलीनेस का डिप्रेशन का एंड देर विल बी डेज वेयर आप कॉन्शियसली खुद को उठा के यू विल ट्राई टू चीयर योर सेल्फ फील लाइक अ नॉर्मल पर्सन बट इट वोंट कम सो ईजी सो
like I can go on and on about grief. So अब थोड़ा और कैटेगराइज कर देते हैं. ये तो grief की बात हो गई. Grief journey, early period is all about isolation and loneliness and a lot of responsibilities. प्रोसेस Hmm. करने का टाइम नहीं होगा. इवेंचुअली आप प्रोसेस करोगे करोगे, रिचुअल्स आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, फेस्टिवल्स आते रहेंगे. यू विल बी रिमाइंडेड ऑफ योर लॉस ईच डे, like forever. Therefore, grief will never end. There is this line that I read: grief lasts as long as love lasts. So, आप अगर अपने obviously you love the person you have lost, so you will Hmm. be grieving till the end of your life. And secondly, it also influences your spiritual aspect of life. Not that हम भगवान में विश्वास करते हैं कि नहीं, religious है कि नहीं, but what is the point again? Existential. Suddenly, your perspective look to your life changes. क्योंकि Correct. हमने सोचा नहीं था और अब तो ये हो गया है, अब क्या कर सकते Hmm. हैं. And इसका like आंसर के लिए we keep searching for that question's answer कि why this happened and especially hmm, why this happened to me, and because of that I think so spiritual grief, I think so that holds the prime thing in our life, in some people's life. So वो बहुत hit करता है कि why me, this question. and this is why it is the hardest pain and no one can relate to you because there is no answer to it. Eventually, acceptance comes with time. वो जो बोलते हैं time is a great healer. टाइम मतलब हाँ ग्रेट हीलर कह सकते हैं, यू कैन नॉट डिनाई इट, बट उसके बीच में भी अ लॉट ऑफ कॉन्शियस एफर्ट एंड सप्रेशन ऑफ इमोशंस, डिनायल ऑफ रियलिटी, ये सब बैकग्राउंड में चलता रहता है. यू कैन नॉट एस्केप द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग. And coming back to why it influences the spiritual journey as well, because इसका आंसर कहीं किसी एजुकेशन सिस्टम बुक में लॉजिक में नहीं होता है. इफ डेथ हैज हैपेंड टू यू, इट इज द मोस्ट एक्सट्रीम पार्ट. इससे ज़्यादा कुछ आप देख भी नहीं सकते हो. And therefore it will force you or it will push you into questioning every aspect of your existence. Hmm. Therefore interpersonal, emotional, social आप social में भी ऐसा कि your entire life is now shattered. You have lost the like आपके जीवन जिसके अराउंड रिवॉल्व करता है. You have lost a friend or parent or sibling, एंड जस्ट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, सब नॉर्मल है, वही स्ट्रीट्स है, वही सोसाइटी है, वही घर है, वही मोहल्ला है, वही मार्केट है, एवरीथिंग इज नॉर्मल. एंड फॉर यू इनसाइड वुड साउंड लाइक ऐसे कैसे हो रहा है. Hmm. Going back to imagining yourself standing in that street of China, everything hustle bustle is on and nothing is making sense to you. क्या Correct. बोलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है. And cognitively also, because of that योर माइंड बॉडी एक्सपीरियंस आपके मिल के वो ट्रुथ और रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं. योर बॉडी इज स्ट्रगलिंग इन दैट रिजेक्शन फेज. सो बिकॉज ऑफ दिस इट्स वेरी नेचुरल टू हैव थोड़ा सा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. मेमोरी इश्यूज हो जाते हैं, चीज़ें रख के भूल जाना या कुछ सोचा था याद नहीं आ रहा. नींद नहीं आती है तो उससे भी आप का थिंकिंग स्लो हो जाता है. अगले दिन हम वैसे ही अगर एक रात नहीं सो पाए तो अगले दिन काम नहीं कर पाते हैं. हाँ. सो एक लंबे समय के लिए ईदर पीपल ओवर स्लीप, ईदर पीपल गेट इंसोम्निया. ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है. और ये हो रहा है, इट मीन्स दैट यू आर रिएक्टिंग इन अ राइट वे. ऐसे Hmm. ही रिएक्ट करना चाहिए. देर इज नथिंग रॉन्ग विद यू एंड एवरीथिंग that happens in your life, like not external event but internally, आप कैसे सोचते हो, कैसे फील करते हो, कैसे देखते हो, everything will be influenced by your grief. Now coming back to grief support and क्या कर सकते हैं इस बारे में. If you are lucky enough that you have friends and family who are providing you the support you need, but most of us are not. सो उसके लिए है ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप्स, जैसे कि अंतकरना ग्रुप भी है हमारे, वी आर डूइंग दैट, और एनी अदर सपोर्ट ग्रुप, मेंटल हेल्थ ग्रुप यू फाइंड ऑन इंटरनेट. इफ यू आर Hmm. ग्रीविंग, I would encourage you to just join that.
not with the reassurance that you will find help or comfort, but for a short period of time, for a second, maybe you could find some belongingness there, जो कि मिसिंग होती है because you have lost your loved one. You associated your attachment figure, your connection, सब Hmm. उस टाइम पे shattered होता है. You are not able to connect with anyone. But listening to someone else's story going through the same pain as big as yours may make you feel a sense of belongingness for a little while. तो वो थोड़ा सा comfort, that emotional support is very much needed, and it is essential to emotionally and mentally empower you to go through another difficult day next morning and do all your tasks and responsibilities, which is very exhausting. I just have one question here. Hmm. जैसे यूजुअली इंडिया में काउंसलिंग थेरेपी इज समथिंग लाइक नहीं बेटा यू नो यू शुड नॉट डू इट कि ये मतलब आप मेंटली कुछ प्रॉब्लम नहीं है यू शुड नॉट डू इट एंड व्हेन वी आर ग्रीविंग सो दैट्स लाइक व्हेन यू आर ग्रीविंग एवरीबॉडी नोज इट एंड यू कांट हाइड इट तो जब व्हेन वी चूज फॉर यू नो ग्रीफ सपोर्ट और some similar counseling it becomes kind of like there's a lot of people watching you or listening ki why she is doing is something wrong with her वो एक phobia सा है so it becomes I think so it's more difficult to find such people and speak out so I mean what should I mean हम लोग को फिर मतलब how do we relate to it like you know how do we come out of that fear कि लोग देख रहे हैं and you know just go with कि ठीक है I need counseling I'm not feeling fine so how do we do that I mean since we are in India and यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है कि आप बेटा काउंसलिंग कर लो थेरेपी कर लो ऐसा कोई नहीं बोलता like no elder person in India goes with that mentality कि you should look out for that so how do we already we are grieving we are in a very low point तो वो कैसे encourage करें कि you have to do it? Like, do you have any insight for people who are struggling to find to lean on somebody and they are just in a phase कि how do we do it? सो ऐसे में ग्रीफ काउंसलिंग और ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप्स हम लोगों की जनरेशन के लिए हैं, द Hmm. यंगर जनरेशन. इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है एल्डर्स को कि हम ये क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, बिकॉज इफ यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन इन योर फैमिली, ईच फैमिली पर्सन इज गोइंग थ्रू देयर जर्नी. इट्स जस्ट हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारे कल्चर में जो 13 डेज का गीता पाठ या जो 13 दिन का एक पूजा कार्यक्रम, सबके रिलीजन में कुछ ना कुछ चलता है एज मतलब अंडर द नेम ऑफ रिचुअल. इट इज़ नॉट बिकॉज मतलब कभी सोचा है कि हमारे रिचुअल्स जो होते हैं स्पेशली डेथ के वो क्यों होते हैं. एवरी रिचुअल हैज़ अ मीनिंग. वो बात अलग है कि हमको बस करने को बता दिया जाता है और हमें हाँ हाँ हम करते हैं. उसका सिग्निफिकेंस नहीं बताते हैं. So that 13-day ritual is for us to process the information, to make sense of it. और उसमें हमें रिलीजन से हेल्प मिलती है, एल्डर लोगों को Hmm. रिलीजन से हेल्प मिलती है. तो True. हमारे लिए ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप इज उनका रिचुअल्स या पूजा पाठ करना या गीता पढ़ना या कुछ भी जहाँ पे वो कनेक्ट कर पाते हैं. उनको सडनली सेंस बनाने लगता है. रिलीजन गिव्स यू दी आंसर्स ऑफ थिंग्स जिनका कुछ हमें सेंस नहीं समझ आता है. रिलीजन इज एन ईजी वे आउट. चलो तो वहाँ पे नहीं जाते, बट ये मैंने अपने फैमिली में भी देखा है कि सडनली मतलब माय ग्रैंड मदर पास्ड अवे व्हेन आई वाज इन क्लास 6. सो माय फादर जस्ट स्टार्टेड टेकिंग माय ग्रैंडफादर टू टेम्पल डेली और रोज उनको गीता पढ़ने को बोलते थे और ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. सो Hmm. दैट वाज लाइक दैट टाइम जहाँ पे आप थोड़ा एस्केप कर सकते हो अपनी थिंकिंग से, अपनी Correct. सैडनेस से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो. एक स्पेस मिल जाता है आपको, ब्रेक मिल जाता है, क्योंकि ग्रीफ तो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा. सो जैसे एल्डर लोगों के लिए वो करके लाइक है रिलीजियस रिचुअल्स हैं, हाँ वैसे ही ये हमारे हमारी लिए ग्रीफ सपोर्ट काउंसलिंग ग्रुप है. अगर हम वो चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पाते, हमें ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए. ऑल्सो उस जनरेशन को इमोशनल नीड्स के बारे में नहीं सीख के बड़े हुए हैं. वो हाँ कंडीशनिंग नहीं है. हमारी जनरेशन पे आके अवेयरनेस मिल रही है. ओके, इमोशनल नीड्स कुछ होती है, इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनकी अलग लैंग्वेज है, वोकैबलरी है.
वो हम्म। लोग बस मतलब जो एक आपने अपने घर में भी कभी सुना होगा, मन उदास है मन भारी है, बस वो मन उदास और भारी ही रह जाता है, बट उसके बीच में क्या है वो शब्द अगर हम सिखा सके, लोगों को बता सके, लोग एक्सप्रेस कर सके, हम्म। थोड़ी देर का हम कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. हाँ। So, for people who really want to support their friends and family who are grieving, just read some grief books या कुछ podcast सुन लो. Just find some हम्म। vocabulary कि क्या हम words use कर सकते हैं that I cannot imagine मतलब how much painful this has been for you. मतलब इतना कुछ वैसे कुछ कंफर्ट नहीं करेगा, बट स्टिल रादर देन सेइंग हिम्मत रखो या एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, ये सब नहीं बोलना चाहिए You मेरे should rather हिसाब forward them कि ये grief support you can go to and join, तुम्हें अच्छा लगेगा, something like that, something on those basis. We should encourage them to find a ground, to connect. से. यहाँ पे भी अच्छा कभी कुछ नहीं लगेगा. द हाँ। पर्सन हु इज ग्रीविंग उसको कभी अच्छा नहीं लगेगा. सो पता नहीं हमें मतलब पर्सन हु इज ग्रीविंग जस्ट गिव देम स्पेस टू एक्सप्रेस. वो क्या पता यही सुन के चिढ़ जाए, आप सपोर्ट देना चाह रहे हो वो चिढ़ जाएगा, वो बात ना करेगा, वो इग्नोर करेगा, वो अवॉइड करे. हम्म। So just be persistent to provide हम्म। support to Okay. anyone who is grieving. Just be persistent with your efforts. Don't just say I am here. Actually हम्म। visit their place. Actually make them feel. You don't have to make them know that you are there. You have to make them feel that you are there. Okay. Because suddenly they don't know where to go, what to do, what to say, what to ask. You just have to make them feel that. So persistence is one thing, acknowledgement and validation is other thing, and also the your own awareness that no matter how much hard you are trying to comfort them, there may be 90% of the days where they won't feel comfort, and it's still all right. Mm-hmm. Okay. So There's we've one. got a question. Is there a right time to move on from a grieving phase? No, there is no right time, not at all. राइट टाइम हमारे सोसाइटी और कल्चर के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होता है कि अब तो इतना टाइम हो गया, आप क्यों याद कर रहे हो. इवन इफ यू पोस्ट अ स्टोरी, आजकल ये नॉर्मल बिहेवियर है. You are posting your story, you are using that virtual space to express, to write, to share your past life या उस loved one की से रिलेटेड कुछ भी, anything. बेसिकली आप उनको याद कर रहे हो तो आप स्टोरी पोस्ट करोगे, बट इट कैन बी परसीव्ड एज, ये मैंने रिसेंटली अपने क्लाइंट के साथ देखा था, फ्रॉम देयर लव्ड रिलेटिव्स इट कैन बी परसीव्ड एज वो मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, वो अभी तक पुरानी चीज़ों को याद करते हैं. वो पुरानी चीज़ों को कैसे भूलेंगे, वो पुरानी चीज़ें उनकी रियलिटी रही है, उनकी लाइफ रही है. तो पुरानी चीज़ों को याद करना तो बहुत नॉर्मल बात है, बहुत नेचुरल बात है. सो देर इज़ नो राइट टाइम टू मूव ऑन, बिकॉज ग्रीविंग इज़ योर न्यू रियलिटी. ग्रीविंग इज़ योर लाइक इट्स योर न्यू नॉर्मल. आप जो चीज़ें करते थे डेली अपने घर में, इफ़ यू हैव लॉस्ट योर सिबलिंग यू वोंट बी एबल टू डू दैट. सडनली यू विल क्वेश्चन योर ओन लाइफ. यू हैव टू मेक योर न्यू नॉर्मल इफ योर सिबलिंग इज नॉट एनी मोर, और पेरेंट्स या जो भी है. सो ग्रीविंग वर्ल्ड इज योर सेकेंड फेज ऑफ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी के घर में शादी होती है या बच्चा होता है, तो शादी के बाद हम न्यू घर में शिफ्ट करते हैं, न्यू फैमिली में जाते हैं. बच्चे हम्म। के बाद डायनामिक्स बदल जाते हैं, आप फाइनेंसेस को फिर से सोचते हो, आप सब मतलब पूरा घर में एक्स्ट्रा स्पेस होती है, एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड होती है, हर चीज़ का एक कैलकुलेशन होता है, एक डिस्कशन होता है कि क्या कैसे करना है, क्योंकि एक हम्म। नया मेंबर आ रहा है. या फिर आप शादी के बाद जा रहे हो, एक नया मतलब एक थोड़ा सा नेचुरल टाइम लगता है, एक आध महीने का, टू एडजस्ट इन दैट न्यू एनवायरनमेंट विद न्यू फैमिली मेम्बर्स. यही सेम चीज़ होती है, यही सेम चेंजेस होते हैं माइंड बॉडी में. When you lose a person, you think about the finances, you rethink about the space, you question everything. Um, बहुत बेसिक चीज़. इफ़ यू हैव लॉस्ट इन योर फैमिली, घर के खाने का क्वांटिटी तक इफ़ेक्ट होगा आपका, कि पहले इतना खाना बनता था और अब कम बनेगा. आपके फाइनेंसेस, अगर मतलब किसी पे कुछ कुछ भी लोन है या क्या है, एंड सारा लीगल वर्क एंड पेपर वर्क ऑफ डेथ सर्टिफिकेट एंड एवरीथिंग, people who are grieving can only relate to
what I'm saying right now, that everything will be influenced, nothing will feel normal. You will have to learn to do these new tasks of or taking over the responsibility of the person you have just lost. So आपके लिए ये completely नया normal है, and इसीलिए आपका ये grieving phase end नहीं होगा. You will just learn in time how to adapt to it, or how to just, yeah, मतलब start to be feel yourself in that phase. So we were talking about grief support. So I Hmm. think, would you want to continue? You can ask any question. इतना कुछ है. Grief support will only provide you as, it's not a therapy, it's not counseling. It's just a group of people that come together with sharing the same pain, same trauma, and discussing their stories. Or maybe if it's a run by professional, you may get to learn some healthy coping mechanisms, like किस तरीके से हम अपनी इमोशनल नीड्स को अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो अपने में प्रोसेस कर लें. मे बी रीडिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ क्रिएटिव करके. So we've got one question. How to identify self-destructive traits in a person going through a grieving phase? Okay. Self-destructive traits comes from a mental space of um, existential crisis, comes from the mental space of hopelessness because they don't find any meaning to it. Suddenly you have lost your parent or sibling or friend जिससे आप रोज मिल रहे थे. अभी सुबह बात हुई थी एंड शाम को न्यूज आ गई. कुछ Hmm. सेंस नहीं बनाएगा. ऑब्वियसली यू विल फील क्या फायदा जीने का, क्या करने में, क्या कुछ कुछ नहीं रखा है. सो ये एक आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनसे बात करके, उनके थॉट्स को सुन के, उनके मेंटल स्पेस का अंदाज़ा लगा के, एंड उनके बिहेवियर्स. आर दे अवॉइडिंग यू फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम? आर दे हैविंग देयर मील्स ऑन टाइम? आर दे स्लीपिंग और नॉट? If they are not talking about the pain, are they even going out for the small errands या कुछ भी कुछ कमरे में बंद रहते हैं तो ऑब्वियसली अनहेल्दी है और डिसफंक्शनल भी है थोड़ा. एंड जस्ट उसमें भी यू कैन नॉट फोर्स प्रोफेशनल हेल्प. ये भी एक वाई इट इज सो सेंसिटिव एंड सो क्रिटिकल, बिकॉज if the other person is not ready, you just cannot force professional help. You cannot convince them, you cannot push them. You just have to be Being there listening, understanding. and accept that other person is not ready yet. Just accept that other person is not ready yet. And सबका अपना अपना जर्नी, अपना अपना पेस होता है. उस बीच में यू कैन जस्ट मेक श्योर कि बेसिक नीड्स खाने और पीने की वो भी पूरी हो रही है तो बहुत है. I एंड just, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ट्रेड्स पे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उनके बिहेवियर्स को देख के, उनके थॉट पैटर्न्स को देख के. मतलब सडनली डार्क ह्यूमर, मतलब आई डोंट नो कि हम किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, कंसिडरिंग कि इफ इट्स आवर एज, आप अगर बात नहीं कर रहे हो, आप अपने में बंद हो, आप if you are drawing something, if you are listening to dark music, watching dark humor, किस तरीके से आप अपने ग्रीफ को, उस इमोशन को प्रोसेस कर रहे हो? बिकॉज इवन इन आइसोलेशन, like, person cannot just sit idle for 24 hours. You will definitely get hints from your surroundings. there's one more question. Are there any ways to make our parents understand how important grieving is? That's actually very That's much, actually, yeah. because our parents do not understand the kind of rhythm, the kind of emotional support we require at that moment. Because there is a gap, like you have to accept it. There is a gap. So, what are your views on this? So parents को understand कराने से पहले my question would be to that person: Have you understood what grieving is? Because if you are trying to make them understand, you will be using some vocabulary, some sentences या कुछ ऐसी बातें बोलेंगे आप जो उनको कभी किसी ने नहीं बोली है.
उनके जनरेशन में और उनकी अपब्रिंगिंग में नहीं बोला जाता कि बेटा टेक योर टाइम, आप बहुत पेन में हो, आज आप काम मत करो, इट्स ओके। ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के लिए, मोस्ट ऑफ देम। हम्म। एंड स्पेशली इफ मतलब जो हाउस वाइफ्स हैं या जो इन जिनको बाहर का एक्सपोजर नहीं है, तो उसमें तो और भी ज़्यादा। हम्म। दूसरा कि आप बोल के अंडरस्टैंड नहीं करा सकते। इट्स जस्ट इफ यू आर विटनेसिंग योर पेरेंट्स गोइंग थ्रू सर्टेन बिहेवियर्स, या कुछ ऐसा सिचुएशन होती है कि कुछ भूल गए हैं, सोच के करना था, और अगर आपके पेरेंट्स इफ दे आर गोइंग थ्रू दैट ग्रीफ फेज, यू जस्ट नीड टू एक्नॉलेज देयर शॉर्टकमिंग्स कि कोई बात नहीं मम्मी, कोई बात नहीं पापा, हो जाता है। जस्ट उसको वैलिडेट करो, लेट गो करो, उसको एक्सेप्ट करो। इसी तरीके से धीरे धीरे अपने एक्शंस के साथ आप अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल, इफ़ योर मदर इज़ ग्रीविंग और एनीवन इज़ ग्रीविंग, मतलब एल्डर्स में, एंड उनका रोज़ का कुछ भी खाना बनाना या अखबार पढ़ना या कुछ भी जो उनका एक रूटीन एक्ट है जो वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आप देख रहे हैं, या उनके सडनली मूड में शिफ्ट आ गया है, चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं ठीक से, कुछ भी है, तो आपको उसको अगेन स्पेस देना है कि ऑब्वियसली दैट पर्सन डजंट नो कि व्हाट सॉर्ट ऑफ बिग इमोशन या एक कितना बड़ा चीज़ को कॉग्निटिवली या इमोशनली प्रोसेस करने नहीं आता है उस जनरेशन को। हम्म। तो उनको बताकर एक हद तक ही समझाया जा सकता है, लेकिन अगर एक्शन में बार बार एक्नॉलेजमेंट दें और सपोर्ट दें फिजिकली, ये ज़्यादा मुझे लगता है बेहतर तरीका है टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट, ओके, मेक देम रियलाइज दैट समथिंग बिग हैज हैपेंड एंड इट इज़ ओके टू डू थिंग्स इन अ रॉन्ग वे, और इट इज़ ओके टू बी फ्रस्ट्रेटेड। बट अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर मैं आपके कोई आंसर को स्पेसिफिक बनाना चाहती हूँ तो यू कैन मैसेज मी इन पर्सनली। आई होप आई हैव आंसर्ड यू। This usually happens like when we are grieving, मतलब हम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाते and at the same time even they are going through the same phase, so it kind of becomes a struggle to communicate, to have a few, like, smooth communication or kind of any kind of communication कि वो लोग हमें समझ पाए. So I guess the things that you said, that we can do different, there can be different ways to express it. जरूरी नहीं है बात करके ही हम उनको express करें. Other भी, there are other things, and it is actually shocking that वो लोग ये चीजें समझते हैं. मतलब होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि क्या समझेंगे. We get angry and they actually interpret the anger and then try to understand कि हाँ, if there's something wrong, they usually not this way. And that's how our parents are kind of understanding our emotions related to when we are grieving. Because this pandemic may, I think so, there were days or within a week, there were news that, we have lost this person or something similar to that. And since it was so new, there were moments wherein we did not know how to express this. We didn't know how to relate to it. Like कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि रोना है या फिर क्या फील करना है. So initially, obviously, we saw that our parents were. I mean, obviously, there was a gap कि नहीं समझ में आ रहा था कि ये communicate कैसे करें. But धीरे धीरे, as in the days go by, everyone faced different moods throughout the day, which were very different from usual. And उसी के through that kind of वो हमारी भाषा बन गई थी एक दूसरे को समझने के लिए कि हम इमोशनली डिफरेंट फेज में ट्रैवल कर रहे हैं. एंड आई थिंक सो धीरे धीरे वो स्पेस हम एक दूसरे को देने लग गए थे. तो यस, वो था. सो ये भी है कि हर कोई ग्रीफ रो के एक्सप्रेस नहीं करता है। हम्म. अगर एक फैमिली मेम्बर की डेथ हुई है तो ज़रूरी नहीं हर कोई रोएगा, बिकॉज बैकग्राउंड में हिम्मत रखो की कंडीशनिंग सबको मिली, स्पेशली द मेल पार्ट ऑफ द फैमिली. So maybe they might express anger by binge eating or avoiding their meals. Maybe they express anger by
गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड इजीली, चिड़चिड़ होके बाल चिड़चिड़ा हो पाना या फिर गुस्से से एक्सप्रेस करना डजेंट मीन दैट पर्सन, मतलब वही है कि आप किसी के रिएक्शन को जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इवन इफ यू आर क्राइंग, यू आर शाउटिंग, यू आर एंग्री, यू आर एक वो होता है ना, एक हमारी बोला जाता है बदतमीजी से बात कर रहा है, इससे तो बात हाँ। करना बेकार है, ये तो सुन नहीं रहा है। ये हम्म। इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि इसके ब्रेन में सुनने की क्षमता नहीं है अभी, तो नहीं सुन पाएंगे। सो हाँ, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ chaos एंड ruckus इन द फैमिली, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन हिंड्रेंस आ जाता है इजीली, एंड सब लोग पेन में है, कौन किससे कितना ही बात कर लेगा, क्या ही बोल लेगा। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम जितना जिस इंटेंशन से हम चाह रहे हैं कि इस लाइफ से या इस कॉन्वर्जेशन से लोगों को अवेयरनेस मिले, ये एक्सेप्टेंस आप में और मेरे में भी होनी चाहिए कि उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा ये इतना बड़ा इशू है, एंड इशू भी नहीं है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ रियलिटी है है। जो हम्म। रियलिटी है, यस थैंक यू, रियलिटी है जो इनएविटेबल है, और लाइक इसको नॉर्मल बना दिया जाए तो भी हम्म। बहुत है, हम्म। स्पेशली पैंडमिक में, ऑफ कोर्स, बिकॉज पैंडमिक में इट्स लाइक आर हमारी जनरेशन की ट्रेजेडी है ये। हम लोगों की जनरेशन ने कुछ बड़ा, अगर बहुत ही एक होता है ना हिला देने वाला कुछ देखा है तो ये है, अ लॉट ऑफ अस हैव इन आवर लाइक intimate family and friends who have lost their loved ones. I So mean, lockdown itself was a kind of situation which nobody had experienced. Because there were situations wherein we were already isolated because of the norms, because of the condition outside. And these जो मतलब ये न्यूज आती थी हमें, वो हमें और अंदर से अकेला और एक डर सा भी हो गया था कि वो बोलते हैं ना कि hmm, मतलब कभी ने देखा है, वो एक्चुअल hmm, रियलिटी हो गई थी। एंड ये grief, talking about death or talking about grief is such a मतलब ये इतना sensitive and delicate है कि nobody knew the approach to it कि अब मतलब how do we move on, how do we not even move on, how do we live with this hmm, kind of situation। and hmm, हम मिलने भी जाते हैं कि जैसे people express it differently, like सबको समझ में नहीं आता कि अभी everybody chooses the right word to speak to the people or be addressed to। so I think so pandemic में एक kind of हम ऐसे वेव के थ्रू गुजरे हैं जिससे आई थिंक so मूविंग फॉरवर्ड हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को एटलीस्ट ये बताएंगे कि दिस इज द रियलिटी, लाइक हाउ आवर पेरेंट्स हिड इट फ्रॉम अस कि नहीं बेटा, they never talked about grief or they never talked about death। I think so moving on from here, we will be able to communicate or we'll make sure that the next generation knows about this emotion and hmm, have this sensitivity, but be able to cope with that, hmm. like we are learning to cope, we teach them or at least let them know from a younger age so that मतलब हाँ obviously it will be tragic even then, but we will be having a communication or we will be able to speak to each other, and वो जो communication gap हम अब feel करते हैं with our parents, hopefully that gets smaller and smaller with time। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल करेक्ट पॉइंट बोला, इमोशनल अवेयरनेस मतलब इट्स लाइक अ टूल टू लिव अ बेटर लाइफ जो हम अपने लिए बना सकते हैं। एंड एक बात आपने अभी बोली थी कि इसमें से कोप कैसे करना है किसी को नहीं पता है, हम्म। because a lot of factors influence your coping journey as well. The way you have received the news, the way you are breaking out to your family, the way funerals happened, the way you were treated by society, the way you were provided support और help, आपको मिला भी नहीं, मिला भी कि नहीं, आपके घर में अगर 2-3 दिन खाना नहीं बना तो कोई आया कि नहीं, हर किसी के ग्रीफ जर्नी में ये एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। तो हर छोटी चीज़ जो आपको अर्ली पीरियड में आपके साथ हुई है विल इम्पैक्ट ऑन हाउ यू आर फीलिंग एंड हाउ यू आर लुकिंग एट लाइफ द नेक्स्ट डे, हाउ मीनिंगलेस, हाउ होपलेस, हाउ पेनफुल इट इज़। आपका एक दिन का जो भी इंस्टेंसेस रहते हैं वो अगला दिन का नज़रिया डिसाइड करता है, ऐसा होता है। सो कोई बता नहीं सकता है, एंड इवन वही बिलोंगिंगनेस फील करना बहुत मुश्किल है
किसी को नहीं पता है, कोई हमें एजुकेट नहीं करता, कोई बात नहीं करता है। और इवन मतलब मैंने एक एक पॉइंट पे मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल लेक्चर्स भी सुने थे कि जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जितने भी छोटे छोटे ये रिलीजियस ग्रुप्स चलते रहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रुप्स, इसमें क्या बोला जाता है, तो उसमें भी वही हिम्मत रखो और ये तो होना है। तो ये तो जो हमारे बड़े भी हमें बोलते हैं, ये तो होना है और हिम्मत रखना है। लेकिन कैसे, वो कैसे हम हमारी जनरेशन अपने लिए और आगे वाली जनरेशन के लिए सीख सकती है, इमोशंस को स्पेस देके, सेल्फ क्रिटिकल ना होके, एंड इन ऑर्डर टू कोप, लाइक आपका प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा बहुत इम्पैक्ट करेगा। आप जो जॉब कर रहे हैं, आपका काम में मन नहीं लगेगा, एंड यू विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही, एंड आज ये नहीं हुआ, आज मुझे अपने भाई बहन या पेरेंट्स की या मम्मा की पापा की बहुत याद आई। तो जब आपके ऐसे थॉट्स आ रहे हैं ना, मेक श्योर यू गिव एटलीस्ट 1 आवर और 2 आवर एंड जस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ कि अभी मेरी क्या नीड है, इंस्टेंटली मेरी क्या नीड है। क्या मुझे किसी से बात करने का मन है? ओके, अगर है तो क्या मेरे पास कोई बात करने के लिए है? नहीं है, तो मैं और किस तरीके से अपने इमोशन को प्रोसेस कर सकती हूँ? मे बी लिसन टू अ सैड सॉन्ग और वॉच एनी सैड वीडियो और सैड मूवी। इतनी सारी ग्रीफ के और डेथ के अराउंड सिनेमा में भी बहुत चीज़ें हैं। व्हेन यू आर वॉचिंग समथिंग दैट इज मैचिंग योर ओन पर्सनल इमोशन, इट कैन प्रोवाइड यू अ सेंस ऑफ कंफर्ट। आप कुछ देख सकते हो, कुछ सुन सकते हो। नहीं तो आज मतलब जस्ट राइट एंड पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, लिखो बहुत अच्छे से जो लिखना है, डायरी बनाओ। यू कैन इवन लाइक स्टार्ट राइट जर्नलिंग या कुछ भी टू अबाउट योर लव्ड वन whom you have lost, to keep them alive। उनकी चीज़ें देखो, मतलब ये सब चीज़ें बोली नहीं जाती हैं करने के लिए, बट दिस इज हाउ यू रिस्पेक्ट योर इमोशंस ड्यूरिंग दैट डिफिकल्ट फेज। लाइक ज़रूरी नहीं घर की सारी फोटोज हटानी है, आपको लगानी है आप लगाओ, आपकी क्या नीड है उस एक सेकेंड में, जस्ट क्वेश्चन दैट योर सेल्फ। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू ईट एंड ड्रिंक ऑन टाइम, जो नहीं कर पाते हैं लोग। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमारे साथ आफ्टर वी हैव लॉस्ट दैट पर्सन, जो जो सिचुएशंस बनती जाती हैं, दैट इन्फ्लुएंसेस एंड इम्पैक्ट ऑन आवर पर्सनल वे ऑफ कोपिंग, कि हम कई बार चाह के भी हेल्दी कोपिंग नहीं ला पाते। इफ वी हैव टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डील विद, वी कैन नॉट गिव टाइम टू आवर इमोशंस, और हमें गुस्सा आता रहेगा, चिढ़ते रहेंगे, पुरानी लाइफ को याद करते रहेंगे, गिल्ट रिग्रेट के थॉट्स चलते रहेंगे कि काश वो ये ऐसा होता या वैसा होता, पापा होते, मम्मी होती, भाई होता, बहन होता, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जब भी आने वाले टाइम में आपके किसी ने जो क्वेश्चन पूछा था, इज देयर एनी एंड टू दिस ग्रीविंग फेज एंड वी कैन मूव ऑन, वी कैन मूव फॉरवर्ड, we can take our bag of grief and move along with it, but move on क्या होता है, ये grieving में like move on से ज़्यादा हम move forward बोल सकते हैं, क्योंकि हम you cannot just leave your loved one behind and not ever think about them again. This will never happen. You will definitely think of them on most of your journey ahead. So yeah, I I think. just have one more question. कि say, like, how do you think that we should, like, if we are, जैसे हम लोग promote कर रहे हैं that we talk about grief, that we talk about it, then do you have any advice कि how do we do that? क्योंकि अभी हम खुद जैसे if we talk to somebody who has not experienced this, who has not experienced grief or death in their life, then how do we, I mean, you know, how we approach कि उनको कैसे बताएं कि ऑब्वियसली क्योंकि इफ समबडी हैज नॉट एक्सपीरियंस वो दे वोंट मतलब एकदम दे वोंट बी एक्सेप्टिंग इट, दे लाइक दे जोक अराउंड और दे विल नॉट टेक इट सीरियसली, सो हाउ डू यू थिंक दैट वी इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ इमोशन टू देम so that they have the same awareness or at least 50 to 25% उतना हमारे हम उनसे कनेक्शन बना पाए इस इमोशन के लिए. ये क्वेश्चन है फॉर पीपल हु आर विलिंग टू सपोर्ट एंड डोंट नो हाउ, राइट? सो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट यू टू जस्ट गो थ्रू सम ग्रीफ ब्लॉग्स या ग्रीफ बुक्स पढ़ ली, या फिर मतलब टेड टॉक बहुत ही सुनने में अजीब लगेगा, बट
कुछ भी आइडिया आपको यूट्यूब पे ग्रीफ वीडियोस देख के of therapists of people who have or people who have मतलब come out with their grieving stories, personal stories, और इवन वी कैन शेयर सम ग्रीविंग लिंक्स मतलब पेजेस जो भी चल रहे हैं ऑफिशियल ग्रीविंग पेजेस आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत कंटेंट है like just get the idea or if I am the counselor so मेरे personal और extended circle में lot of people approach me that their loved ones have passed away and they don't know how to approach them so आप अगर आपके फ्रेंड्स में या नोन में कोई काउंसलर है या कोई मेंटल हेल्थ ग्रुप चला रहा है जस्ट अप्रोच देम कोई nobody is judging you and everyone is there to help you so that can be done and if you are listening to this I would want people who are willing to support to be mentally aware and uh, एक होता है ना मतलब create that sense of mental and emotional stamina that if your loved one is grieving they may talk in a weird way they may use dark humor they may not respond at all like they may just be silent and just give you a stare they may judge you for supporting for they may judge you for providing them support and comfort as well they will definitely do that so kuch bhi ho please don't mind and just still make them feel and not know that you are still there for them eventually your friends and family members will like they will be fine Like so giving them space is very much required at this moment. उसके लिए आपको भी अपना एक इमोशनल स्टैमिना बनाना है कि सामने हम्म, वाला इंसान जैसा भी रिएक्ट करेगा इट इज़ ओके हमको हाँ, पर्सनली नहीं लेना है हमको एक्सपेक्टेशंस एसोसिएट नहीं करनी है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं तेरे को तेरे लिए आया हूँ या तेरे लिए आई हूँ और आप ऐसे कर रहे हो तो इट्स ओके अगर वो ऐसे कर भी रहे हैं तो this is I the think only this way is the out difference. you cannot take away their pain you cannot reduce their pain and no matter how much you try um, उसका उस पेन का इंटेंसिटी 1% भी कम नहीं होगा उनके लिए सो आप बस उनका हाथ पकड़ के बैठ सकते हैं दैट्स ऑल I think that this is the difference between past generation, like our parents, and us. हम थोड़े ज़्यादा we need immediate results, and our parents are quite patient with this process. Like I have seen this very closely. That compared to me, my parents are very calm and मतलब ठीक है उनको भी चाहिए होता है, but we like our generation are kind of भागने वाली कि हमें जल्दी जल्दी सब कुछ करना है तो आई थिंक सो दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी इंड्यूस कि थोड़ा पेशेंस एंड टॉलरेंस होना चाहिए एंड स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स तो हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू थिंक अबाउट दैट पर्सन एंड नॉट योर सेल्फ लाइक आप अटेंडेंस नहीं लगाने जा रहे आप जस्ट जा रहे हो उनसे मिलने के लिए तो बस आई थिंक सो बीइंग देयर और just acknowledging whatever is happening is the best that you can do. yes just being there is the best you can do because even we are not taught how to support people in grief True. ये इस बारे में मतलब इट्स लाइक कि खुद को कॉन्शियसली एजुकेट करो और समझो एंड फिर सपोर्ट प्रोवाइड करो एंड इट कैन जस्ट कम आउट ऑफ प्योर हेल्प हेल्प मतलब हेल्प करने के इंटेंशन से या एम्पैथी से इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट टू एक्चुअली प्रोवाइड इमोशनल हेल्प टू पीपल And I think so even the part that actually there are movies जो मतलब होता है ना kind of helps us connect with the situation. Like there is a movie 50-50 wherein a person is suffering from cancer. तो उसका दोस्त he does not know how he is going through and obviously he has that kind of sensitivity that he does not ask him कि तुम you know what you're going so he goes you know he buys a book and to understand what people feel when they are going through cancer or this kind of process so I think so this is something that we have to adapt obviously once a person who watches such movie उसको लगेगा कि हाँ I should not poke that person कि तुम कैसा फील कर रहे हो तुम क्या फील कर रहे हो I should kind of learn it for myself and then so that I can support that person who is going through a very difficult journey. Yes, this this little intention of
being open to the idea of first educating yourself or preparing yourself is good enough for the person who is grieving to feel that how thoughtful you are being as a friend or family member. True. And so I read this amazing piece of writing in a Mm. grief book, which I would like to just read it out. Um, थोड़ा creative write-up है ये, and it can easily give you the idea of what grief feels like to a person of or what it feels like if you've lost a loved one. So should I read it? It will just take 2 minutes. Yeah, yeah, Uh, sure. Please. so it's recipe for raw grief from the kitchen of a person who has lost a loved one. The ingredients are one heaping cup of disbelief. You don't know how to react. You are in complete state of Yeah. denial and rejection. 1 tablespoon reluctance to say goodbye. Like you are just not ready for to let them go even after the rituals. So Mm. maybe most of people may not cry or go numb or just be सरप्राइज कि कैसे इतना सारा रिचुअल जैसे हो गया और टाइम गुजर गया और एकदम से एक दिन एक रात को ऐसे बाउट ऑफ एंजाइटी या बाउट ऑफ क्राई और ऐसा आ जाएगा एंड इट विल हिट यू so hard that oh my god that person is not anymore. So, 1 heaping cup of disbelief, 1 tablespoon reluctance to say goodbye, 16 ounces of excruciating pain, 3 cups of brutal sadness, 2 tablespoon confusion. Confusion, one because of your obviously cognitively you are just all over the place and Mm. you are feeling a lot of emotions. You are feeling anger because um, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, you are not accepting. Anger is a primary emotion that helps you to survive. तो Mm. अगर आप grief phase में हो आपको गुस्सा आता रहेगा. If you have lost your closest of your family member, there will be days you will feel very angry on your lowest points कि अगर वो इंसान होता तो हमें ऐसा इस सिचुएशन में नहीं आना पड़ता. And anger is just if you are feeling angry, don't feel guilty or regret because it's also natural to feel, and it is just a signal that you are still not ready to accept it. Anger is something, some anger means that something has happened around you and Mm. you don't approve of it. And obviously, we will never approve of death of our loved ones. Eventually, acceptance आएगा, but earlier period की बात मैं बोल Mm. रही हूँ. So, 2 tablespoons of confusion, half cup constant obsessing. You would be craving for to talk about your loved one, but people around you won't be comfortable. कुछ लोगों को लग सकता है अरे हम इनको ट्रिगर कर देंगे. कुछ लोग अगर आप बात भी करना चाहोगे आप बात करोगे भी तो सामने वाले को पता नहीं कि कैसे क्या रिएक्ट क्या करें कि हम क्या बोले अब तो वो नहीं है. एंड इवन इफ यू आर टॉकिंग योर वोकेबलरी मतलब स्पेशली हिंदी में कि Choice वो of words. मम्मी मम्मी करती है मम्मी करती थी हो जाता है. जब इस चीज का रियलाइजेशन आता है ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ग्रीफ में where it will hit you hard and you it will just pass naturally that moment. सामने वाले को नहीं पता लगेगा कि वो है का थी बोलने में आपको कितना पेन हुआ है. So half cup of constant obsession, 8 ounces of anger, 2 teaspoons of agonizing guilt, because your brain and mind will be like running after making sense of your reality. बहुत सारे रिग्रेट और गिल्ट के थॉट्स आएंगे कि मैंने ऐसे किया होता मैंने वैसे किया होता. यू विल स्टार्ट रिकॉलिंग द एंटायर लास्ट पीरियड दैट पर्सन वॉज मे बी इल और सिक या कुछ जो भी सिचुएशन थी आप उसको रिकॉल करते रहोगे एंड यू विल ट्राई टू मेक चेंजेस इन योर थिंकिंग कि मैंने ऐसे किया होता वैसे किया होता तो आज वो बच जाते. Mm. सो इसलिए 2 teaspoons ऑफ एगनाइजिंग गिल्ट, 3/4 cup एम्बेरसमेंट बिकॉज अ पर्सन हु इज ग्रीविंग आपको इजीली जज कर सकते हैं सोसाइटी में. यू विल बी एक्सपेक्टेड टू मूव ऑन एंड ऑल्सो वन थिंग दैट इवन इफ यू आर एक्टिंग मतलब नॉर्मल नॉट नेचुरल Mm. हंस रहे हो बात कर रहे हो एक दिन Mm. बाहर चले गए प्लान बना लिया अगर आपने कर भी लिया सडनली इट विल बी कंक्लूडेड एज अरे अब तो ये ठीक हो गया है या हाँ. ये ठीक हो गई है. तो ये ठीक
कभी नहीं होते हैं ग्रीफ में। ये सिर्फ Hmm. पीपल हु आर ग्रीविंग विल अंडरस्टैंड, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Right. इट इज़ माई लाइफ, इट इज़ माई रियलिटी, मैं ठीक कैसे हो रही हूँ मतलब। Hmm. सो इसीलिए, एंड like you will be expected to act normally, and if you are not able to live up to this their expectations, for some reason you are hanging out with your friend and suddenly started to feel blank, और मतलब जोन आउट हो जाते हो या नहीं समझ आता कैसे रिएक्ट करना है, यू मे फील एम्बेरस्ड। सो 3/4 कप ऑफ एम्बेरसमेंट, इसलिए इसका 3/4 कप है। एंड 1 quart लोनलीनेस, 1 quart लोनलीनेस इसलिए बिकॉज it will take a lot of time and a lot of conscious effort and a lot of emotional faith on yourself to find belongingness in your new normal, जो easily नहीं आता है। And dash of untimely and needless. So ये थी हमारे ingredients of grief. And Hmm. now let's read the directions, how to cook this recipe. Preheat oven to 1123 degree. In a small bowl, mix disbelief with reluctance to say goodbye. Okay. Uh, Obviously, you will not accept it and you will be reluctant, but you have to do the rituals. So, mix the disbelief and reluctance to say goodbye. Hmm. Next, trim platitudes from excruciating pain and discard. Use mixture to coat your pain, because you have to pretend and stay strong and be normal and like just take over the responsibilities. You don't have choice. Some on Hmm. some days you grieving is also luxury है। मतलब अभी इंडिया में जहाँ लोग सरवाइव करने में और फाइनेंसिस को संभालने में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, Hmm. grieving would be a luxury. Cook it with tears and bring it to a boil. Lower heat. Pour brutal sadness into pot and cover. Allow to simmer for weeks and weeks, because the sadness will never go easy. When sadness is numbed, remove from heat and drain tears from pot. This is for the nights or for the moments of that grieving person, where like suddenly you just get a hit and you were numb, you were fine, you were staying strong, and अरे एकदम से रोना आ गया या एकदम से एंजाइटी हो रही है कि अब मैं क्या करूँगा लाइफ में, क्या करूँगी लाइफ में। When sadness is numb, remove from heat and drain tears from pot. Stir confusion and constant obsessing into sadness and set aside. Use mullet to pound anger until tender. Cut into bite-sized pieces. Fry in a pan over high heat with agonizing guilt and embarrassment. When anger turns red, remove pan from heat. To assemble, spread pain into bottom of baking dish. To assemble, spread pain into bottom of baking dish. It मतलब it reflects कि how normal you are going through your life, you will be carrying that pain forever. You will be carrying that pain of losing your child or friend. Like that pain will never go away. Eventually, you will stop talking about it. You will start pretending that you have not lost anyone. ऐसा भी होता है that if you have lost, उस बारे में बात ही नहीं होती है। अरे आपका कोई भाई बहन था पहले, बहुत पहले डेथ हुई थी, अब क्या फायदा बात करने का उसके बारे में। So if you are grieving, you are already carrying a lot of pain daily. So, uh, where is it? When anger turns red, remove pan from heat. To assemble, spread pain into bottom of baking dish. Layer on the sadness mixture, then cover with anger, guilt, and shame. Top it with loneliness. Season with untimely and needless. Place in oven and bake until loneliness turns into intense longing. Because you are so disconnected from your own self, from your past life that just happened before losing your loved one, Hmm. you will not be able to relate to anyone. एंड दैट इज द टाइम जब आप किसी से रिलेट नहीं कर पाओगे, किसी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे और आप अंदर से बहुत डेस्परेट होगे टू जस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल comfort. Therefore, place it in oven and bake until loneliness turns into intense longing. Let it sit for a lifetime. So this is what actually grief feels like, अगर हम थोड़े से words में भी
एक्सप्लेन कर पाए. This recipe pairs well with absolute fear. Best served smothered in love and compassion. All you can provide in support is love and compassion, and make space. Garnish with a sense of peace. Eventually, when acceptance comes, you will find peace. मतलब वो होता है ना कि व्हेन आपको आपके रिलेटिव्स या एल्डर जनरेशन ऐसे कंफर्ट कराएंगे कि वो भी यही चाहेंगे जिनको हम्म, आपने खोया, वो भी यही चाहेंगे. दे वुड बी वांटिंग यू टू स्टार्ट योर लाइफ ऑल ओवर अगेन, बी हैप्पी. दे हम्म, वुड बी विलिंग यू टू सी इन अ गुड प्लेस. तो इवेंचुअली दैट विल हैपन. इट इज, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, हम क्या करेंगे उसके लिए, वो किसी को नहीं पता है. हाँ. ये यहीं पे आता है रियलिटी वाला सबकी पार्ट. डिफरेंट जर्नी होती है. वी कांट डिटरमाइन और मेक देम चूज अ जर्नी फॉर ग्रीफ. But eventually I think so people who is grieving will make peace with it. And it's their own decision when they want to make peace with it. Yes, it's their own decision and we cannot force it or push it. Okay. So, yes. Do we So have any questions? I don't think there are many questions. I guess you have actually covered everything that a person who is grieving or who is looking out for grief support, maybe for themselves or somebody from the family, like to support a friend or other family member. I think so we have talked about everything. कि हम लोग को basically, the basic thing is to acknowledge and listen and give them space that they require. And obviously, since we are oblivious to this emotion, we need to be educated. We need to understand. We need to educate ourselves to fit in so that we no more are so scared or we don't feel कि हम कैसे बात करेंगे, हम क्या बोलेंगे, हमें क्या बोलना है. Plus the person who is grieving knows his surrounding, his environment. क्योंकि जैसे आपने बताया था, we feel alienated. हमें लगता है कि हम बहुत random या फिर unknown जगह में आ गए and we don't know our way out of this. So I guess this is a maze that we will fall into, and it's that in that time everything is okay. Like I think so सब अपनी journey से ही करते हैं. Some accept it, some don't accept it, but in time things fall into places, I can say. Not exactly as expected. पहले जैसा था पूरी reality change हो जाती है. But somehow we make peace with it. Somehow वाला किसके फेज में कब कैसे किस तरीके से आता है वो तो हम नहीं बता सकते हैं. हाँ. हम्म. बट हाँ, ये न्यू नॉर्मल में एडजस्ट होने के तरीके क्या हो सकते हैं इज बाय बीइंग अवेयर कि हम्म. मतलब बाय स्टॉप फाइटिंग विद योर ओन सेल्फ. ग्रीफ में सबसे ज़्यादा फाइट हमारी खुद से होती है हाँ. टू ट्राई टू गेट बैक टू योर ओल्डर वर्जन विच वॉज when you had your loved one with you, हम्म. and you will never easily get back. वो ओल्डर वर्जन नहीं आएगा, वो एक नया अलग हाँ. वर्जन बनेगा. वो ओल्डर वर्जन को पाने के लिए ही हम लगे रहते हैं. मेरी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हुई, मैं पहले ये ऐसे काम कर लेती थी, अब मुझसे ये नहीं होता है, वो नहीं होता है. सो वो चीज़, इस चीज़ की समझ आना या रियलाइजेशन आना कि वो वाली लाइफ नहीं आएगी. दिस इज़ फॉर पीपल हु आर ग्रीविंग इवन इफ दे हम्म. नो. मैं बहुत सारी बातें, बहुत छोटी छोटी मामूली सी बात पॉइंट्स बोल रही हूँ, but I am saying it with the intention, if anyone who is grieving and listening to this, this is for them to like realize कि आप जो feel कर रहे हो वो ऐसा है. हम्म. एंड लाइक हाँ, वो आप जो फील कर रहे हो वो ऐसा है. एंड अगर आप सब किसी को सपोर्ट करना चाहते हो तो जो फील कर रहे हो उनको करने दो. हम्म. दिस इज द ओनली वे आउट. And I think so support is very much required इस journey में. मतलब जस्ट बीइंग देयर जरूरी नहीं है कि बार बार मतलब हमें उनके साथ उनको हर चीज को समझाना है या फिर हर चीज की रीजनिंग देनी है. आई थिंक सो जस्ट बीइंग देयर इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव टू डू. लाइक ये हमें अपनाना है, बट ये सपोर्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस टाइम. लेकिन अपनाने की कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते हाँ. हैं. हाँ.
नहीं मतलब यस। एक मतलब उनको एक एहसास दिलाना है कि हम हैं। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में द पर्सन हु इज ग्रीविंग विल नॉट एक्सेप्ट इट। वो नहीं चाहेगा कि वो किस मतलब वो एक कट ऑफ सा हो जाता है। बट हमें वो भी मतलब इफ वी आर मतलब अगर इफ आई एम सपोर्टिंग समवन हु इज ग्रीविंग तो मुझे ये एक्सेप्ट करना है कि वो चाहेगा कि वो दूर जाए। एंड इट्स ओके। बट आई विल स्टिल स्टैंड फॉर यू लाइक अ सपोर्ट इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस टाइम। Maybe I am the person who is grieving or I'm supporting someone who's grieving. I मतलब in time support is something that will help us जैसे आपने बोला था move forward from this. Like that is very much and it's something that इंडिया में वो थोड़ा inculcate होना चाहिए कि मूव आप फॉरवर्ड विद इट, मूव, हाँ हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते, हम उसको साथ with it लेके आगे चल सकते हैं विद हाँ इट। क्योंकि इसे हमारे लाइक ऑब्वियसली ओल्डर जनरेशन ने नहीं देखा है दे हैव स्ट्रगल्ड थ्रू इट एंड दे थिंक कि ऐसा कुछ नहीं होता कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा ये सब चीजें नहीं होती हैं बिकॉज ऑब्वियसली देयर सिचुएशन वाज डिफरेंट। वी नाउ हैव अ अवेयरनेस तो हमें उस अवेयरनेस को यूज करके वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट एंड आई मीन वी हैव टू बी मतलब सपोर्ट इज समथिंग दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस सिचुएशन। सपोर्ट से पहले भी एक यही चीज नॉर्मलाइज करना कि डेथ के बारे में एक ईज के साथ कैसे बात कर सकते हैं। हम्म मतलब even if you and I will listen to a death news or receive a death message that person is passed away, हम ही एक सेकंड के लिए साइलेंट होंगे, दैट इज आवर नेचुरल रिएक्शन कि ओ करेक्ट शिट, अब क्या बोले, क्या लिखें। दो तीन बार हम मैसेज टाइप करेंगे, बैक स्पेस करेंगे, हिम्मत नहीं होगी, सपोर्ट देना भी चाहते हैं तो क्या बोलेंगे। सो ये इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, इसके लिए हम ऐसी कॉन्वर्जेशंस को ही बार बार करना है और नॉर्मलाइज करना है डेथ के बारे में बात करने के लिए। हमारी जनरेशन, हमसे एल्डर जनरेशन, जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, उसमें तो हम नहीं अलग कर ही, सकते हैं वो हाँ नहीं ला सकते। लेकिन हम आपस में कर सकते हैं डेथ के बारे में ओपनली कंफर्टेबली ऐसे बात करना जैसे, क्योंकि द पर्सन हु इज ग्रीविंग उसके लिए डेथ इज वेरी नॉर्मल थिंग दैट इज हैपेंड। हाँ एग्जैक्टली बहुत ही मतलब, हाँ जैसे ठीक है बचपन में फ्रैक्चर हुआ था या कुछ बीमार हुए थे, चिकन पॉक्स हुआ था, ऐसे हाँ, नहीं नहीं है मम्मी, नहीं है भैया, नहीं है दीदी, हमारे लिए या पीपल जो ग्रीव कर रहे हो उस कैटेगरी के लिए ये इतना नॉर्मल हो जाता है। बट क्या जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से एक फ्रैक्चर या चिकन पॉक्स की बात कर सकते हैं, क्या वो अपने मुंह से इतना इजीली बोल पाते हैं कि क्या वो इतना रेफरेंस दे पाते हैं जो लव्ड वन है जो जा चुके हैं। सो मतलब बात कर करके ही, बोल के ही अपने में एक सेंस ऑफ ईज लाने की कोशिश करनी है। इट्स फॉर जनरल अवेयरनेस and first step where the people who are grieving can find space naturally on their own to express themselves. I guess we will just wait around ki if anybody has any questions uh, to share so that we can talk about it. Yes, I would really welcome some questions. Last time when we had Antakarna mein, I think we had a pehel on grief support and 20th June, I guess. Date याद है. so but it was a really good experience like होता है ना कि फर्स्ट टाइम इट्स ऑलवेज वी डोंट नो कि we'll be able to speak or not क्योंकि हो जाता है टू शेयर इन फ्रंट ऑफ पीपल यू आर नॉट you don't know also there's मतलब एक kind of you have I'm sorry मैं काटना चाहूँगी, but this is also one milestone of grief for the person who is grieving to actually put their reality out collected there into some statements or words और उसको मुंह से बोलना, हम्म मतलब इससे खुद को भी एक एक्नॉलेजमेंट आती है। इट इज दिस वन टाइनी स्टेप टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस। सो ये बहुत बड़ी बात है अगर आप अपनी स्टोरी बता पा रहे हैं किसी को या बोल पा रहे हैं। I guess it's
we had like we had Shikha with us. तो एक हम्म, वो होता है ना, एक प्रोफेशनल सपोर्ट हो जाता है कि मतलब काइंड ऑफ आई डोंट नो, एक अपने आप वो होता है कि ठीक है मतलब मुझे कुछ आंसर नहीं मिलेगा, मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी, बट मैं बोल रही हूँ तो मतलब मुझे खुद अच्छा लग रहा है, मतलब हम्म, वो प्रोसेस खुद हो जाती है when you hear such things and when you know small instances from others and you are able to connect कि हाँ ये even I feel kind of similar, even I have that hesitation, even I choke up when you know when I'm talking to a friend or somebody who has lost their dear ones. तो मतलब you are able to connect and speak. So उस पहल में वही था कि we all experience a similar kind of belongingness. yeah, exactly. And there were many people whom we were not like, there were many new joinees who had come that time, तो बहुत अच्छा लगा था. And when we shared the Google form for registration, तो there were many people who were looking out for grief support. हम्म, मतलब होता है ना कि मतलब we were so happy कि we took the step to actually promote grief support and talk about it, though we were ourselves not very sure or prepared कि how that will be, because it's a very delicate topic. And abhi to I think so because of this pandemic, it has been a widespread, like everyone is facing that, so it becomes very difficult ki matlab people will be in different state, will be able to help them or will be able to let them open up to. I guess through this live, it was a more of an insight कि this is something that is needed, like एक एक समझ होनी चाहिए सबको, क्योंकि हम्म, अगर नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे, मतलब इमोशनल जो एक मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ये तो इज द ये टाइम, द प्राइम टाइम दैट यू आर देयर फॉर अदर्स, यू आर वेरी ये मच देयर. इसकी भी अवेयरनेस की मतलब हमारी कंडीशनिंग में, और अगर हम अपने बड़े हाँ. लोगों की जनरेशन देखें, सो वहाँ पे इमोशनल नीड्स का नहीं कॉन्सेप्ट इतना, मतलब स्मॉल छोटी सी लाइफ है वो, उनका सर्वाइवल में हो गया है, मतलब ये हमारी जनरेशन है और एवोल्यूशन है जो हमें, आई थिंक अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि अब सर्वाइवल नीड्स पूरी हुई है तो इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है और इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि हमारी इमोशनल नीड्स जब केटर होती है, जब हमें अंदर से बेटर फील होता है तो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो इन्फ्लुएंस करता है कि हम्म. आज मन ठीक है तो काम करने में एफर्ट हम्म. नहीं लगा, जो एक मन खराब में हमें अगर अपने डेली जॉब में लगता है एफर्ट, तो इतना ज़्यादा बेसिक और प्राइमरी और ज़रूरी है इमोशनल नीड्स को ध्यान देना, जितना ही हम्म. खाने और पीने के लिए होता है उतना ही, वरना हम्म. सुसाइड रेट्स इतने नहीं बढ़ते अगर इमोशनल नीड्स केटर होती. हाउ टू ओवरकम सोशल एंजाइटी व्हेन यू आर ग्रीविंग. ओके, नाइस हम्म. क्वेश्चन शारण्य. सोशल एंजाइटी खैर अपने लाइक, okay, so I am assuming कि ये social anxiety is induced by your grief phase rather than your like, जो होता है लोगों को, कुछ लोगों को social anxiety as a condition भी रहता है. So grief में ये अच्छा point लाए हैं कि जब आप बाहर जाएंगे आप zoned out feel कर सकते हैं, वही alienated feel करेंगे. You may feel hesitant, underconfident to even like, maybe you are going after a long time out with your friends on a meal. You may feel hesitant and underconfident to place an order to a waiter. ऐसे में भी सोशल एंजाइटी आ सकती है. या आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं थ्रू योर जॉब और सोशल सर्कल और एनी सोशल कमिटमेंट, एंड लाइक यू 2 minutes before your meeting you are thinking about that painful incident या घर की कोई सिचुएशन, एंड हम्म. एकदम से यू स्टार्ट फीलिंग एंशियस उस सोशल सेटिंग में कि क्या करना है. So how to overcome that is, there is no way. Like if you are stuck in a social situation and you have started to feel anxious, you just need to take a pause. Just मतलब get yourself out from that space. Maybe washroom चले जाओ या बाहर चले जाओ थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए, एंड इंस्टेंटली, बहुत ही क्लीशे है बट एक्चुअली इफेक्टिव है, टू टेक अ डीप ब्रेथ. इवन बिफोर दिस लाइफ आई वाज सिटिंग एंड डूइंग दैट डीप ब्रीदिंग. It relaxes your nervous system instantly.
डीप ब्रीथ करना, सोशल एंजाइटी उस मोमेंट में, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्रॉड क्वेश्चन है, हाउ टू ओवरकम सोशल एंजाइटी। ओवरकम के लिए यू कैन सीक काउंसलिंग एंड थेरेपी, बट इफ यू आर फीलिंग सडन एंशियसनेस और सडन एलियनेशन, या एकदम से वो हो गया है, ब्लैकआउट हो गया, जोन आउट हो गया है, and you are in that social setting and you are expected to react in a certain way, just take yourself out from apart, थोड़ा साइड होके, and अपने आप को समझा के and get yourself back. That is the natural instant way that I can suggest you. Otherwise you can always reach out for professional help, and one should reach out if you know anyone who is going through this. Usually और we are expected to be normal. जैसे हम बाहर से, if somebody has lost someone close one and they choose, after a period of time they choose to go out with their friends or something, तो obviously the friends will be conscious, but हम जो the person who is grieving, he or she kind of comes in a situation कि वो सोचते कि नहीं हमें नॉर्मल एक्ट करना है, नॉर्मल एक्ट करना है। वो एक दिमाग में अलग चीज हो जाती है कि अभी तक मतलब हम सोचते हैं कि अभी तक लाइफ नॉर्मल हो गई है हमारी, we choose to accept that कि हमारी लाइफ abnormal हो गई है and now we have to act normal. So I guess ये individual पे ये depend करता है। यस, ये भी एक पॉइंट कि हमें वी डोंट हैव टू रश टू ओवरकम दैट सोशल एंजाइटी, बिकॉज इफ इट इज Exactly. grief induced it will stay for a short time, it will definitely stay, and it will stay for a short time, and maybe it is coming out of the space that you are not able to express yourself authentically in that social setting. आप जो जैसे रिएक्ट करते थे उसमें अपने ऑफिस में जाके, मीटिंग्स में जाके, या जो बोलते थे, कॉन्फिडेंस, हम्म। आपका कॉन्फिडेंस हिंडर हो जाता है, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली इन दैट लूप ऑफ मीनिंगलेसनेस, होपलेसनेस वाले थॉट्स, इन दैट हम्म। मूड। सो अपने कॉन्फिडेंस को हम छोटे छोटे तरीकों से रीगेन कर सकते हैं, बेबी स्टेप्स, लाइक थोड़ा सा बाहर गए, पेट्स के साथ खेल लिया, नीचे डॉग के साथ, कैट के साथ खेल लिया, पार्क में किसी से स्मॉल टॉक कर ली। छोटे छोटे मोमेंटरी सोशल इंटरेक्शंस कैन ऑल्सो लाइक हेल्प यू गेट बैक योर कॉन्फिडेंस या मेक यू फील बेटर, थोड़ा सा नॉर्मल इन योर ग्रीविंग फेज। I guess we should, at this moment when we are grieving, we should give ourselves the space to choose कि हमें क्या करना है. If I'm not comfortable confronting somebody, मतलब somebody new, or I just want to be alone, and थोड़े time बाद when I think that I'll be okay, so we need to give ourselves that space and choose what we want to do rather than rush into, like you said ना कि जरूरी नहीं है कि सब हर चीज में आपको फिट इन होना ही है immediately once you when once you have that tragedy in your life, it's not necessary कि आपको फिर वापस नॉर्मल को एक्सेप्ट ही करना है। आप जैसे हो, जो अच्छा लगता है, सो वी शुड चूज टू फिट इन टू दैट फर्स्ट। बट ग्रीफ में ये भी होता है दैट पर्सन इज नॉट इन दैट मच ए मेंटल एनर्जी टू इवन हाँ। थिंक। उतनी हम्म। मेंटल एनर्जी नहीं होती है कि मुझे कुछ चाहिए, मेरी कोई नीड है तो मैं किसी को कॉल करके हेल्प ले लूँ। उतना मेंटल एनर्जी नहीं होता है टू इवन क्वेश्चन योर सेल्फ कि व्हाट इज माई, कि अच्छा स्पेस देना है, ये अवेयरनेस नहीं होता। यू आर जस्ट इन दैट कॉन्स्टेंट सैड डिप्रेस्ड स्टेट। हाँ। और मतलब ये तो अर्ली पीरियड की बात हो गई। इवन इन लेटर पीरियड देयर विल बी डेज वेयर द रियलिटी विल हिट यू हार्ड अगेन एंड यू विल spend your day in a unproductive crying way. So ऐसे में people who are like willing to support can be considerate and ask, okay, हम्म। I am here, and what do you want me to do? Do you want me to talk? Do you want me to गेट यू सम फूड, या कुछ भी, मतलब हम्म। ये भी एक चीज को नॉर्मलाइज करना कि सामने वाले से जरूरी नहीं है कि आपको पता हो कि सामने वाले को क्या चाहिए, आप उससे पूछ लो। हम्म। सिंपल सी बात, पूछ लो और प्रोवाइड कर दो। लाइक दिस इज द इजीएस्ट एंड ऑनेस्ट वे टू प्रोवाइड दैट सपोर्ट, कि मुझे नहीं पता है बट प्लीज टेल मी व्हाट डू यू वांट मी टू स्टे, डू यू वांट मी टू गो।
Inculcating a new normal is better than old normal. Yes, definitely inculcating word बहुत ही अच्छा word है to describe the grieving journey because you're in that new period of life जो post death period है आपका, that is nothing but integration of old memories, present reality, future apprehensions. उन सबको इंटीग्रेट करके आपको साथ में हर एक दिन गुजारना है. आपको अपने लव्ड वन की बहुत याद आएगी, आपको उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है. प्रेजेंट वे में इतना डिस्कम्फर्ट और पेन जो आप फील कर रहे हो उसको कंटेन करना है अपने माइंड बॉडी में. और उसके बाद अब फ्यूचर कितना अनसर्टेन है, कितना अलग है. जो प्लान्स बनाए थे दैट मेंबर इज नॉट एनी मोर. यू विल हैव टू रीथिंक ओवर दोज प्लान्स, रीथिंक ओवर दोज फाइनेंसेस. सब कुछ फ्यूचर से रिलेटेड एकदम से थॉट्स आएंगे. एंड वन मोर थिंग दैट ग्रीफ इज अबाउट, लाइक ग्रीफ विल टीच यू दैट नथिंग वॉज एवर इन योर कंट्रोल. And therefore your mind will try to be anxious in that anxious state every time to मतलब try to get anything in control. कुछ तो हो Hmm. कि चलो मैं आगे आगे के बारे में सोचने लग जाएंगे, अब ऐसे नहीं ऐसे होगा कंट्रोल में लाने के लिए, बट नहीं होता हमारे कंट्रोल में कुछ. So this integration is another like a word language जिससे grief process कैसा होता है वो explain किया जा सकता है कि एक ही साथ past present future आपको साथ लेके चलना पड़ता है grief में. I guess we can conclude. Uh, हमने काफी आई थिंक सो काफी अच्छे बात से कर ली. टाइम ले लिया या 1 hour 30 minutes हो गए. हम्म. हाँ, तो तो बट आई थिंक मतलब आई काइंड ऑफ फेल्ट मतलब मुझे काफी चीजें पता चली जो मुझे नहीं पता था. मतलब आई यूज टू थिंक कि मतलब only a professional help can help you move on. But once you said कि you have to educate yourself, that kind of strike me कि हाँ ये भी तो एक है ना. मतलब we have to look out for sources. We have to this is a new normal and we have to like अब इस पे साथ ही चलना है तो सीख को चीजें सीखनी पड़ेंगी. एंड it's you have to like accept it in a way that everything feels normal and we can help each other while doing this. So yes, हर बारी प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल नहीं होती, लोग रेडी uh, नहीं होते, इसका मतलब ये थोड़ी कि ग्रीफ में कंफर्ट नहीं ले सकते. exactly. सो हाँ, मतलब ये एक तरह से ग्रीफ एज क्या बोलते हैं, एज अ रियलिटी, एज अ सिचुएशन को एक्नॉलेज करना इज मतलब वो जो होता है ना लाइन मॉडर्न प्रॉब्लम्स के मॉडर्न Mm, सोल्यूशन. सो ऐसे ओपनली ग्रीफ को एक्नॉलेज नहीं करते आए हैं हम, बट अगर हम करें अब और इमोशनल नीड्स को एक्नॉलेज करें, सो जस्ट बाय लिटिल बिट ऑफ एजुकेटिंग योरसेल्फ इज द मॉडर्न सोल्यूशन. mm. Hmm. It was a good So conversation. Thank you so much, yeah, Sumit, for joining us. thank you so much, I Shreya, for think having me. we should like I think we have to carry forward this grief support from Mantakana side so that in future events we can have more people and help them understand or help them cope up with this feeling, this overwhelmed feeling that they have. And obviously, as the poem read, there was a lot of confusion, there's a lot of rage, and there's always an underlying pain that we don't know how to overcome. So we look forward to have more sessions with you. We look forward कि Antakana provides good grief support or a kind of a common plane where everyone can come and talk and just accept कि these two emotions are very much out there and धीरे धीरे it will fit in with us. We will kind of live with it. We'll understand to live with it or make peace with it, as the poem said. So Yes, thank you so much. Yes. thank you, Shreya. And yes, it is my like I really urge out to urge मतलब है लोगों को बताने की कि
if you or any of your known acquaintance, loved one, जो भी है, if you are feeling ki they are going through a tough time and they need support, please, Antakanda group is always there. You can DM them or DM me, and we can arrange grief counseling sessions for you और grief support sessions और जितना जो भी जैसे भी हो पाए. We are there. This is the space. You can reach out to us. Soon we'll be having a pehel in which we'll be talking about this kind of feeling, the blah feeling. Blah feeling is basically abhi corona time mein we have so much time that there is always a judgment that we have for ourselves कि हम we kind of feel कि आज हमने इतनी productively काम नहीं किया, आज Hmm. आज ये अच्छा नहीं हुआ. So we'll be talking about that in our coming up ahead, the blah feeling, the feeling of blankishness. So Hmm. let's keep on having more events. We are going to have more grief support talks. And yes, thank you so much for joining in today. It was a Right. fun conversation as well as very educating. Hmm. See, even sad things can be fun. New normal. Yes, yes. We Hmm. have to accept it कि हाँ बात करनी चाहिए. हाँ जी, बिल्कुल. So, see you in next Yes. talking. Bye Yes, bye. take Thank care. you. Bye bye. Bye bye.